Hello all GATE CS aspirants, I am Amit Goel. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. This is the last session on the subject, and in this session we will be talking about the code optimizations. More specifically, we'll be talking about machine independent and machine dependent optimizations. All right. And in the previous 19 sessions, we have seen details on lexical analysis phase, we saw the details on syntax analysis phase, then we saw the details on semantic analysis phase, and then finally we saw the intermediate code generation phase. We are completing now the code optimization phase of the compiler. All right. So if we see this, we took some, some 13 sessions on syntax analysis phase, then we took some 2 sessions on semantic analysis, then some 2 sessions on intermediate code generation phase, and then 1 session on over here. So this is 13 plus 5 is 18, and 2 sessions wherein we covered lexical analysis and the basics of the syntax or the basics of the compiler, and what a compiler is, what is the life cycle of a program, and so on and so forth. Right, so that is what we have already seen, and in this session we'll be talking about code optimization in detail. And target code generation is nothing but producing the assembly code for the given 3-address code, the 3-address optimized code, that is basically the optimized code that you have, optimized 3-address code that you have, you'll be generating target code out of it. Right, if we talk about the code optimizations, we have the machine dependent as well as the machine independent optimizations, the optimizations which are dependent upon the architecture of the machine, the architecture of the system that you are using, the operating system that you are using, or the the chipset which you are using. Then these optimizations are called as machine dependent optimizations. Otherwise the optimizations are machine independent, right? So we'll straight away start with machine independent optimizations. हम machine independent optimization से बात करना शुरू करेंगे. सबसे पहले आती हैं लूप ऑप्टिमाइजेशंस, और हमारे पास में कुल मिलाकर के 3 तरह की लूप ऑप्टिमाइजेशंस है, और उन तीनों के अलग अलग बहुत सारे नाम भी हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए. Again, you don't never know which name the examiner is going to take, but you should be clear about, therefore you should be clear about all the names that we have. तो सबसे पहला आता है लूप अनरोलिंग. लूप को अनरोल करना, लूप को अनवाइंड करना, मतलब कि लूप है और उसको हमने अनरोल कर दिया, उसकी लूपिंग के इफेक्ट को थोड़ा सा कम करना. हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेम चीज हो गई अनवाइंडिंग. देन आता है कोड मोशन, कोड को मूव कर देना, लूप इनवेरिएंट और फ्रीक्वेंसी रिडक्शन. फ्रीक्वेंट रिडक्शन और फ्रीक्वेंसी रिडक्शन इज अ बेटर नेम. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें कोड के अंदर हमें इनवेरिएंट कोड दिखा, उस इनवेरिएंट कोड को हमने निकाल के बाहर निकाल दिया. इसे कहते हैं बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिडक्शन, और बेसिकली लूप इनवेरिएंट को बाहर मूव कर दिया, जिससे कि lesser number of instructions are there in the code, therefore we'll have better efficiency. Then loop fusion, loop jamming and loop merging. अगर एक से ज्यादा लूप से हम उन्हें मर्ज कर दें तो हमारी चेकिंग और लूप्स जो है वो सभी बचेंगे, इससे हमारा जो है एफिशिएंसी इंप्रूव होगा. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लूप ऑप्टिमाइजेशंस दैट वी हैव. Alright, so let's see the loop optimizations one by one. First of all is loop unrolling. Here if you see, I'm printing Amit 10 times. ठीक है. So in case I want to unroll this loop, can't I write it like I put printf Amit over here twice? That way I will put over here I is less than equals to 5. So that way I have unrolled the loop, and by the virtue of that I am implementing my instructions. I am checking the loop half the times I was checking earlier. ठीक है. और ये चीज यहीं पे नहीं रुकती, आप चाहें तो सारा ही लूप हटा दें और 10 बार यहां पर printf अमित लिख दें. तो ये हो गया मेरा लूप अनरोलिंग, या फिर आप इसे बोल सकते हैं लूप अनवाइंडिंग. बात करें कोड मोशन की या फ्रीक्वेंसी रिडक्शन की, या फिर आप लूप इनवेरिएंट की बात करें, तो क्या होगा, उसमें कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होगी जो कि लूप के वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होगी. तो उन्हें हमें लूप में रखना ही क्यों है, हम उन्हें लूप से बाहर ले जाएंगे. जैसे यहां पर लूप का जो वेरिएबल है वो i है. x इज इक्वल टू b क्रॉस a. आप चाहे इसको 10 टाइम्स करें, 100 टाइम्स करें, 100 टाइम्स करें,
यू नो 1000 टाइम्स करें, 10,000 टाइम्स करें, आपको मिलेगा तो x इज इक्वल टू b क्रॉस a ही। y जो है मेरा यहां पर डिपेंडेंट है i पे, तो क्यों ना मैं इस इंस्ट्रक्शन को लूप के बाहर ले जाऊं और 10 टाइम्स मुझे 9 टाइम्स इंस्ट्रक्शन कम कैलकुलेट करना पड़ा। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ यू नो ऑप्टिमाइजेशन इन विच वी हैव ऑल अगेन इंप्रूव्ड आवर एफिशिएंसी। हमारी एफिशिएंसी फिर से इंप्रूव हो गई। आ रही है बात समझ में? सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बात करते हैं लूप फ्यूजन, लूप मर्जिंग एंड लूप जैमिंग की। लूप, दो लूप्स को फ्यूज कर देना, फ्यूज मतलब एक दूसरे से मर्ज कर देना। लूप मर्जिंग सेम चीज है, लूप जैमिंग सेम चीज है। आपने दो लूप्स को मर्ज कर दिया, जैसे कि यहां देखें, एक लूप में मैं j को j+1 कर रहा हूं और एक लूप में मैं l को l+k कर रहा हूं, बट दोनों ही लूप्स चलते तो सिर्फ 10 बार ही है। तो क्यों ना मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन को यहां शिफ्ट कर दूं और यहां पर मैं l कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मेरा क्या इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, l इज इक्वल टू l+k था, अभी लूप वेरिएबल k था, अभी मेरा लूप वेरिएबल i है, तो मैं लिख सकता हूं l+i और इस पूरे कोड को यहां से रिमूव कर देता हूं। तो मुझे क्या मिला, एक ऑप्टिमाइज्ड कोड मिला जिसके अंदर मेरे को 10 टाइम्स चेकिंग, सो आई वाज चेकिंग दिस लूप 10 बार मैं इस लूप को चेक कर रहा था, वो चेकिंग मेरी कम हो गई, मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, मेरा कोड जो है ऑप्टिमाइज हो गया। और ये जितने भी हमने लूप के बारे में डिस्कशंस किए, ये सारे मशीन इंडिपेंडेंट हैं। लूप को फ्यूज कर दे, मर्ज कर दे, जैम कर दे, एक ही बात है। लूप को अनवाइंड कर दे, अनरोल कर दे, एक ही बात है। कोड मोशन कर दे, फ्रीक्वेंसी रिडक्शन कर दे, लूप इनवेरिएंट को मूव कर दें, सारी बातें एकदम सेम है। ऑलराइट, आ रही है बात समझ में? आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास आती है कांस्टेंट फोल्डिंग एंड प्रोपेगेशन। कांस्टेंट फोल्डिंग भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट प्रोपेगेशन भी बोल सकते हैं। ये क्या है, हम कांस्टेंट्स को पहले ही कैलकुलेट कर देंगे कंपाइल टाइम में, रन टाइम पे हमारा टाइम बचेगा। तो इस इंस्ट्रक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल्स टू 5 + b क्रॉस 7, दैट इज 2 + 3 हैज बीन कैलकुलेटेड टू 5 एट द कंपाइल टाइम इटसेल्फ। सो this is again also a kind of optimization. Some calculations are being saved at run time. ठीक है, यहां पर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दिख रही है, ऐसी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। अगर आप उन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप बहुत सारा टाइम सेव कर लेंगे। ऑलराइट, बात करते हैं रिडंडेंसी एलिमिनेशन की या फिर कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन की। मतलब अगर आपका कोई कॉमन सब एक्सप्रेशन आ रहा है तो आप बार बार कैलकुलेशंस ना करें। जैसे कि यहां पर हमने लिखा a इज इक्वल्स टू b + c और अगली बार लिखा d इज इक्वल्स टू b + c + e। मैं क्या कर सकता हूं, यहां लिख दूं a इज इक्वल्स टू b + c और अगली बार लिख दूं d इज इक्वल्स टू a + c। तो मुझे कैलकुलेशन जो है पहले से कम करनी पड़ी। तो हमने कॉमन सब एक्सप्रेशंस को एलिमिनेट कर दिया, हमने रिडंडेंसी को एलिमिनेट कर दिया, हमने एफिशिएंसी को इंप्रूव कर दिया, मतलब हमने ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख दिया। आ रही है बात समझ में? सिंपल बातें हैं। आगे बढ़ते हैं हम। एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, अगर हम बात करें एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की, तो हम जो है सिंप्लीफिकेशंस जो कि पॉसिबल हैं वो करेंगे। जैसे a को अगर a से मल्टीप्लाई कर रहा है, a को 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, विल सिंपली रिमूव दिस इंस्ट्रक्शन। a के अंदर अगर 0 ऐड किया जा रहा है, विल सिंपली रिमूव दिस इंस्ट्रक्शन। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, नथिंग इज बीइंग डन, यू नो। मतलब आई शुड नॉट से दिस डजंट मेक एनी सेंस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारा एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन वेस्ट हो रहा है, तो वी शुड रिमूव दीज इंस्ट्रक्शंस। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मान लीजिए आपके पास में अगर ऐसा भी इंस्ट्रक्शन है, a इज इक्वल्स टू a - 0, रिमूव कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। a इज इक्वल्स टू आपको लिख दें a की पावर 1, रिमूव कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। 4 चीजें हो गई, 5वीं चीज क्या है? और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? Maybe a is equals to a divided by 1 doesn't make any sense. Again, मतलब doesn't make any sense to do this. It's already, you are going to get the same thing. A is not going to change. All right. So this is basically algebraic simplification. Once you have done algebraic simplification, other things are strength reduction. Again, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी तक जो भी कुछ डिस्कस किया लूप के बारे में, जो भी कुछ डिस्कस किया कांस्टेंट फोल्डिंग, कांस्टेंट प्रोपेगेशन के बारे में, या फिर अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में, सारी की सारी चीजें मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट अभी तक हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। मशीन इंडिपेंडेंट था अभी तक, मशीन डिपेंडेंट हमने कुछ भी नहीं डिस्कस किया। ये भी मशीन इंडिपेंडेंट है। ए को हमने, अगर हमने यू नो बेसिकली हम स्ट्रेंथ रिडक्शन करना चाहते हैं, बेसिकली अगर आप देखें, ये हो गया हमारा राइट शिफ्ट, ठीक है। अगर हमारे को इंस्ट्रक्शन था a गोज टू a मल्टीप्लाइड बाय 2, यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। अगर हम रिप्लेस कर दें उसे राइट शिफ्ट से, सॉरी राइट शिफ्ट इज, दिस इज राइट शिफ्ट इज डिवीजन।
I should say a goes to a divided by 2. Just a second guys, this is a divided by 2 and this is a goes to a multiplied by 2. For example, you had 10, 100, and if you shift by one place over here, you will get 10. So you will get, this is 4, this is 2, you are dividing by 2. And over here, if you shift by 1 from this place, it was 100, 100 earlier, it becomes 1000, which is nothing but this is 4 and this is 8. All right. I should not say 1000, it is 1000. All right. And this is 100, right. So ये जो है डिवीजन की बात करें या मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस है एज फार एज द कंप्यूटर प्रोग्राम इज कंसर्न, एज फार एज कंप्यूटर इज कंसर्न, उन्हें हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट से रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि हमने स्ट्रेंथ को रिडक्शन कर दिया। इस ऑपरेशन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, बहुत समय ले रहा था, हमने स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया बाय रिप्लेसिंग इट विद द लेफ्ट शिफ्ट। इस ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, बहुत समय लग रहा था, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया बाय डूइंग द राइट शिफ्ट। ठीक है, सिंपल बात है, कोई टफनेस नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एलिमिनेटिंग द डेड कोड, अगर कोई कोड डेड है तो उसको निकाल दें, हम अननेसेसरी कोड क्यों रखें। हैश डिफाइन x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 है और इफ x के अंदर कोई कोड लिखा है, ये सारा का सारा मेरा कोड क्या है, डेड कोड है, तो क्यों ना मैं इस डेड कोड को निकाल दूं और मेरे कोड को सिंपल कर लूं, मेरा कोड सिंपल हो गया, ऑप्टिमाइज्ड हो गया। ऑलराइट, तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेटिंग द डेड कोड। अवॉइडिंग जंप ऑन जम्प्स आए सीखे, तो आप जंप्स पे जंप्स अवॉइड करेंगे, जैसे कि मतलब आप L पे लिखते हैं गो टू L1, आप L1 पे पहुंच गए, फिर आप L1 पे लिखते हैं गो टू L3, आप L3 पे पहुंच गए, फिर आप L3 पे लिखते हैं कि गो टू L5, आप L5 पे पहुंच गए, और L5 पे लिखते हैं गो टू L7 जो कि यहां पर है। तो इतना सब क्यों करना है भाई, क्यों ना हम यहां पर ही लिख दें गो टू L7, कहानी खत्म, ये सब की जरूरत ही नहीं है। तो अवॉइड जंप्स ऑन जंप्स, इससे क्या हो गया, हमारे इंस्ट्रक्शंस कम हो गए, हमारा कोड एफिशिएंट बन गया, देन आई कैन से दैट आई हैव एन ऑप्टिमाइज्ड कोड। सो अगेन दिस इज आल्सो अ मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कोई मशीन की इसमें डिपेंडेंसी नहीं है। ऑलराइट, सो यहां तक हमने जो भी डिस्कशन किया दैट वाज मशीन इंडिपेंडेंट, वेदर इट वाज the loop optimizations that we discussed, loop jamming, loop fusion, loop merging, or loop unwinding, or loop unrolling, or you can say something known as the loop invariant, the code motion, the frequency reduction, all of them, सारे के सारे ये सब लूप ऑप्टिमाइजेशन जितने भी हैं, ये सब के सब क्या है, लूप इंडिपेंडेंट द मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशंस हैं। फिर हमने कांस्टेंट फोल्डिंग देखा, वो भी मशीन इंडिपेंडेंट है, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, स्ट्रेंथ रिडक्शन, सब के सब। ठीक है, देन उसके बाद हमने एलिमिनेटिंग द डेड कोड, एंड देन इफ वी सी दिस द लास्ट वन व्हिच वाज avoiding jumps on jumps, all are machine independent, then we are doing the machine dependent ones. The one is register allocation. Again, registers की जब बात आ गई है तो then it becomes machine dependent optimizations. इसमें जैसे local और global के बारे में बात हो रही है। local मतलब आप रजिस्टर एलोकेशन लोकल कर रहे हैं या ग्लोबल कर रहे हैं, उससे जो है कोड की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। कुछ ऑपरेशंस आपको मल्टीपल टाइम्स करने पड़ सकते हैं बाय मेकिंग इट लोकल और ग्लोबल। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इस तरह के ऑप्टिमाइजेशंस बाय डूइंग द रजिस्टर एलोकेशन लोकल और ग्लोबल, अगर आपके कोड पे फर्क पड़ रहा है तो ये बन जाता है मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। और इसके अलावा जैसे जो COA बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, यूसेज ऑफ द एड्रेसिंग मोड्स, जो कि आप COA के सब्जेक्ट में अच्छे से कवर करते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होता है। अगर एड्रेसिंग मोड के को डिफरेंट करने से आपका कोड ऑप्टिमाइज्ड बनता है, आपका कोड ज्यादा एफिशिएंट बनता है, देन दिस इज नोन एज, अगेन ऑल दीज मोड्स आर मशीन डिपेंडेंट मोड्स, देयरफॉर दीज काइंड्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशंस आर कॉल्ड मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशंस। आप ये बात भी नोटिस कर पा रहे होंगे, जैसे ही हम चीजें मशीन डिपेंडेंट की तरफ जाने लगती हैं, जैसे कि असेंबली कोड हो गया या फिर जैसे कि एड्रेसिंग मोड्स हो गए, तो मैं यही बोल रहा हूं कि दिस इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कोर्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। This has less things to do with compiler design. This has more things to do with COA. All right. So more questions, the questions will be asked from the COA perspective, not from the compiler design perspective. All right. In the machine dependent phases. All right. Then we are talking about the redundant load and store instructions. I think, the redundant load and store instruction, again this is again a machine dependent optimization. There's the second last machine dependent optimization that we have, that is the instructions that we have is A goes to B plus C, D goes to A plus C. अगर आप इसे देखें तो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसका मैं असेंबली कोड लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, पहले आप
मूव बी इंटू आर नोट, बी को आर नोट में डाल दिया, फिर आपने सी को आर वन में डाल दिया, आर नोट और आर वन को ऐड कर दिया, वैल्यू कहां रहेंगी, आर नोट में। फिर आप क्या कर रहे हैं, ए की इस वैल्यू को आप ए में स्टोर करेंगे, मूव आर नोट को माए, आर नेट की वैल्यू को हमने ए में डाल दिया। फिर हमें क्या करना है, डी गोज टू ए प्लस ई, तो फिर से आप क्या करेंगे, मूव ए कोमा आर नोट, ए की वैल्यू को आर नोट में डाला, ई की वैल्यू को आर वन में डाला, फिर ऐड कर दिया आर नोट और आर वन को, और फिर आर नोट की वैल्यू को डी में डाल दिया, क्योंकि आर नोट और आर वन का एडिशन आर नोट में सेव्ड था। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? यहां पर मूव आर नोट कोमा ए एंड मूव ए कोमा आर नोट एक रिडंडेंट स्टेप है। हम इसको ए को आर नोट को जो ए के अंदर मूव ही नहीं करते हैं, और ए को आर नोट में पहले तो हमने आर नोट को ए में डाला और फिर को ए को वापस से आर नोट में डाला, जबकि वो पहले ही वही था। तो क्यों ना हम इन दोनों ही स्टेप्स को निकाल दें, तो हमारा कोड ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है। ये सारी चीज मशीन डिपेंडेंट है। कैसे है भाई, आपका इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर कैसा है, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस अलाउड है, असेंबली कोड की बात हो रही है, वो तो डेफिनेटली मशीन डिपेंडेंट है। अगर कोई चीज मशीन डिपेंडेंट है तो उसकी चीजें सारी की सारी जो है, और जो भी ऑप्टिमाइजेशन हम करेंगे वो तो मशीन डिपेंडेंट ही होने वाले हैं। ऑलराइट, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लास्ट चीज जो आती है इसमें आती है मशीन डिपेंडेंट इडियम्स। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मशीन्स खुद प्रोवाइड करती हैं, अगर आप वो यूज करें तो आपका कोड ऑप्टिमाइज बन जाता है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। जैसे कि आई प्लस प्लस की बात करें तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आर नोट की वैल्यू, आई की वैल्यू को आर नोट में मूव करना पड़ेगा, आर नोट के अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा, एंड देन फिर फाइनली आर नोट को आई में मूव कर देंगे तो आई विल बिकम इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो हमें 3 इंस्ट्रक्शंस चलानी पड़ी असेंबली की। बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली INC का इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो ये सारे ऑपरेशंस को वन सिंगल स्टेप में कर देते हैं, एटॉमिकली कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एटॉमिकली इसको कर देंगे, और इससे क्या होगा, हमारी जो है what do we say is our efficiency, our code will become more efficient, our code will become small, and that's way this is another form of a machine independent optimization. All right. So guys, this was our last session on compiler design. The session is basically, this session is basically based upon, the code optimization. We first of all saw that there can be two kinds of machine optimizations. We can have, machine dependent as well as machine independent optimizations. In the machine independent optimizations, we saw, the loop optimizations. First of all, we saw, loop unrolling, loop unwinding, and all these are loop optimization, loop unrolling, loop unwinding. We saw, the code motion, we also saw code motion, the frequency reduction as well as the loop invariant in the second, as a second optimization. Then we also saw the loop jamming, loop fusion, loop merging, also as a loop optimization, which is again machine independent. Then we saw strength reduction, we saw constant propagation and constant folding. Then we saw algebraic simplification also. Then we saw, dead code elimination also. अगर कुछ dead code है आप उसे निकाल सकते हैं, आपके कोड के अंदर अगर कुछ डेड कोड है तो आप उसे निकाल सकते हैं। इस तरह के ऑप्टिमाइजेशंस हमने देखे। ऑलराइट, ये सारे के सारे ऑप्टिमाइजेशंस जो हमने देखे वो सारे के सारे ये जो हैं मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन है। जैसे जंप ऑन जंप से भी अगेन मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन है, और स्ट्रेंथ रिडक्शन की हम बात करें वो भी हमने देखा, राइट। एंड all these optimizations are machine independent. Then we saw machine dependent optimizations, और उसमें जैसे हमने देखा कि हमारे पास machine based idioms हो सकते हैं, हमारे पास addressing modes change करके हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, then register allocation change करके हम कुछ कर सकते हैं, optimizations कर सकते हैं। then finally हमने देखा what do we say as the last thing that we saw is basically हम किस तरह से और मतलब जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके रिडंडेंट हो जाती हैं असेंबली कोड के अंदर, जिससे कि उसके इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा बहुत इजीली, यहाँ पर जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया कि हम अननेसेसरी मूवमेंट कर रहे हैं रजिस्टर्स के अंदर एक वैल्यू को, उस तरह के ऑप्टिमाइजेशंस भी दे आर, दैट इज रिडंडेंट लोड एंड स्टोर भी हम कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ों को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये सारे काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशंस हमने डिस्कस किए। As far as the code optimization phase is concerned, this is what we have discussed. As far as the compiler is concerned, guys, we have completed the subject of compiler design. We have seen, the lexical analysis in detail. First of all, we saw introduction
to compilers first of all, wherein we saw the starting the life cycle of a program, and then we also saw the various phases of compiler. Then we moved to the syntax analysis phase, wherein we saw the lexical analysis phase first, wherein we did the lexical analyzer, we counted the number of tokens and all. Then we started with syntax analysis. In the first 3 sessions we learned the basics. Then we did 3 sessions on LL1 parser. Then we did 1 session on operator precedence parser. Then we did 1 session on something known as the LR0 parser. We did 2 sessions over there. Then we did 1 session on CLR1 parser, 1 on LLR1 parser, 1 on SLR1 parser also. And then finally we did the conclusion session on syntax analysis, wherein we identified the type of the grammar given. Alright, so this was all we did. And after that we did 2 sessions on semantic analysis, 2 sessions on intermediate code generation, and then finally we have done 1 session on code optimization, which completes our course on compiler design. Theory wise compiler design में यही चीज़ें हैं जो हमने बहुत ही precise तरीके से करी, जिससे आपको कोई confusion ना रहे एग्जाम में. और rest is all about practice, guys. I'll keep you whatever doubts you have, you can keep on posting on the Telegram channel as well as the YouTube videos that you have. We are there to support you in all the ways. All the best, guys, for GATE 2024 exams. See you guys. Thank you so much.